Friends, now we will study about needs or importance of insurance. First is from the point of individual view or from the point of view of family. इसके अंदर there are around 14 points by which we will study one by one and I will explain you what are there in this. First is insurance provides security and safety. Basically इसके अंदर क्या होता है कि insurance it provides a security and safety to the person either at the time of death of his the owner of the policy. If the family needs some financial assistance, then what will happen, the insurance company will provide them the amount of money to the family so that they can run their livelihood or they can live their life smoothly. So why do we need important insurance? We need insurance because it provides the security and the safety for the people if we are not available in the nearby future. And security means a guaranteed amount of money in the form of income which is helpful for the people to earn the money. Next, it encourages saving. How do we do a saving by paying an insurance? As soon as we want an insurance policy, we have to give a certain amount of money in the form of premium. Okay, and that premium is given us a healthy or important uh, or you can say an important point for the people who are willing us or who are depending on us. They provide the security. And what happens if you are paying the premium on the regular basis, then the policy will not be lapsed. If you are not paying the income on a regular basis, then the policy will be lapsed, and because of that you will not get the sufficient amount of profit or sufficient amount of benefits which you are getting from the particular policy. So what does it do? It do that it promotes you. Insurance promotes you to have a saving part in the form of premium, which will be helpful for you in the nearby future area, or in the if something mischief happen to you, then the insurance premium or the insurance company will have a claim on you. Will have you can claim on them, and they can give a certain amount of money to the person, either to the insured person or either to the nominee of that insurance company. It providing investment opportunity. ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि as soon as we give something in the form of money, जैसे ही अपन कहीं किसी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्रीमियम के अंदर. Now investment means what? Basically if you have a policy, then it can be benefit for you in the form of tax saving. बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती है जो आपको टैक्स बेनिफिट देती है. अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर तो आप अपनी और इसकी सेविंग कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट जो अपन ने करा है, और उसके अकॉर्डिंग अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और अंडर सर्टेन सेक्शंस इट प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क और टू डू अ पार्ट ऑफ अ टैक्स बेनिफिट जो आपको मिलता है, जिससे कि आपको टैक्स में कुछ रिडक्शन मिल जाता है. कि जैसे अगर आप 1 लाख मिलते हो, इट बिकम्स इन 80,000 और 90,000, तो आपको 10,000 का टैक्स रिबेट मिलता है. सो हैविंग अ टैक्स रिबेट इज अ पार्ट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट. फॉस्टर्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपने आप खुद को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना. इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अर्निंग मेंबर है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट रहती है, इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे अ लंप सम अमाउंट टू द इंश्योर्ड टू द फैमिली हु इज or the member who is the nominee instead of, or in case the person is not there, so that he can fulfill all his needs and he can work his life smoothly. So it provides an economic independence. अगर आपका कुछ किसी फैमिली मेंबर जो अर्निंग फैमिली मेंबर या जो मेन फैमिली मेंबर है, अगर उसको कुछ हो जाता है, then what will happen, the insurance company will give a certain amount of money जिसको आप यूज करके अपना काम कर सकते हैं. It provide mental peace and security. जब हमें ये रहता है कि हमें इन फ्यूचर अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचने के लिए हमें कुछ नहीं बचा, तो हमें उसकी क्या मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है या मेंटल पीस मिलता है, जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें कि
अगर आपने कुछ अपने आप को सिक्योर करा रखा है, तो अगर आपको इन केस फ्यूचर कुछ हो भी जाता है, तो आपकी फैमिली में आपके पीछे जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ यू आर फील सिक्योर कि हाँ, अगर मुझे कल रिटर्न कुछ हो जाता है, देन आई एम फ्री, I am tension free. The insurance company will give a lump sum amount to the family members, and they can routine their love. Safety of domestic assets from all this. अपन ने बहुत बार सुना है कि फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस होता है। अपन इसके अंदर क्या कराते हैं कि जो भी एसेट्स हमने परचेज कर रखे हैं हम उनको सिक्योर करते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई भी नुकसान होता है तो हमारे को इंश्योरेंस कंपनी देती है। लाइक अपन ने एक बिल्डिंग की एक मशीनरी है, उसको अपन ने इंश्योर करा रखा है, उसमें बाय चांस कोई आग लग गई या कोई भी रीजन से वो कुछ भी हो गया, थेफ्ट हो गई, तो व्हाट विल हैपन, इंश्योरेंस कंपनी विल गिव द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज रिक्वायर्ड और फॉर व्हिच यू हैव सिक्योर्ड। ठीक है, सो अपन बहुत बार डोमेस्टिक एसेट्स को भी हमारे सेफ्टी करा लेते हैं। लाइक आजकल तो फोन का इंश्योरेंस में लग गया, अगर आपके पास फोन का इंश्योरेंस है और अगर आपके फोन की स्क्रीन को टूट जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम देगी। अवेयरनेस टुवर्ड्स लॉसेस, हमें हमारी लाइफ में हमें किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, फोन है टूट गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज के जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उन सबको हम बता सकते हैं कि किस तरीके से कैसा नुकसान हो सकता है, और अगर वो नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएगी। तो इस तरीके के अवेयर लोगों लॉसेस के बारे में हमें बताती है और जिससे कि हम हमारी चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। इट कवर लीगल लायबिलिटी, एक तरीके से लीगल लायबिलिटी चल जाती है किसके ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। इफ यू हैव पेड द प्रीमियम करेक्टली, if every document which you have submitted that is correct, then the insurance company is liable to pay you the amount of money which you have made the insured. जो भी आपने अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस कराई है या मेडिक्लेम या कुछ भी कराया है, उतने अमाउंट की लायबिलिटी देने की जिम्मेदारी रहती है किसकी, इंश्योरेंस कंपनी की, अगर आपने सब चीजें प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन करी हुई है तो it covers the legal liabilities and it passes the liabilities from one individual to the insurance company. Exemption in taxes, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टैक्सेस में बेनिफिट मिलते हैं अंडर सेक्शन, कुछ सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इतने अमाउंट का रिबेट आपको मिलता है कि इतने अमाउंट की अगर आपने ये प्रीमियम पॉलिसी करा रखी है तो आपको इतने हजार का इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। The next topic is safety against disrepute. Disrepute means theft या चोरी। अपने पास कोई भी एसेट अपन ने रखा है उसको चोरी से या फिर फायर से बचाने के लिए अपन इंश्योरेंस करते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर हमें वो चोरी हो भी जाता है तो हमें उतने ही अमाउंट का पैसा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। तो दिस इज मेंशन्ड एज अ सेफ्टी अगेंस्ट डिस्रप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर थेफ्ट हो गया, कोई भी अपने पास कोई चोरी करके ले गया या कोई भी उड़ा के ले गया, कोई भी चीज अपन गुड्स लेके आ रहे हैं वहां से उठा के ले गया, बीच में से रास्ते में हमारे तक पहुंचा ही नहीं, तो वो कुछ इंश्योरेंस होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस कंपनी, जिससे कि हम हमारी एसेट्स को सेफ्टी के साथ रख सकें। नेक्स्ट आता है गुडविल ऑफ द फर्म और द बिजनेस। जब कभी भी हम कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं तो इससे हमारी कंपनी गुडविल बढ़ती है, फर्म की गुडविल बढ़ती है। उससे क्या होता है कि हाँ, हम हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उन सब की सिक्योरिटी हमेशा बना के रखते हैं, जिससे कि अगर इनको फ्यूचर में कोई भी नुकसान हो तो कंपनी के पास इनफ सफिशिएंट फंड हो जो उसके नुकसान को भरपाई कर सके। तो अगर सपोज करो बाई चांस किसी का एक्सीडेंट भी हो गया और इन सबका मेडिक्लेम ले रखा है कंपनी ने, तो जितने भी कंपनी जितने मेडिक्लेम ले रखा है उन सबका कंपनी प्रीमियम बढ़ती है, सैलरी में से डर कर लेती है, बट द एम्प्लॉयज फील सेफ, नो वी आर इंश्योर्ड, हमारी कंपनी ने हमारी हेल्प करी है। अगर इन फ्यूचर हमें कुछ होता भी है देन हमारी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेके हमें दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जिसके अंदर क्या आता है कि